Hello friends, today we are going to discuss a new topic in the current affairs about the e-Raksha, because e-Raksha was launched by NCERT UNESCO or it is a competition for netizens. So these topics belongs to science and technology also in the national. In this topic we learn in section wise. So let's start शुरू करते हैं. First we will see why appeared in the current affairs. ये क्यों current affairs में हम लोग पढ़ रहे हैं. Then we will see what's the aim of the e-Raksha. e-Raksha का क्या aim है. Then we will see how many categories of this competition, because any competition is so many categories. So how many categories of this e-Raksha competition. Then we will see what is the NCERT, because NCERT is the launched in this competition. What is the Cyber Peace Foundation, because this competition was launched collaboration with the Cyber Peace Foundation. Then we will see what is the UNESCO. So let's start. First, why appeared in the current affairs? Because of this. In Indian Express, a article appeared in the Indian Express that is said NCERT UNESCO launched the e-Raksha competition for student, teachers and parents. What this news say? The National Council of Educational Research and Training NCERT in partnership with the Cyber Peace Foundation and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO has launched e-Raksha competitions. What is the aim of this competition? The aim of this competition e-Raksha 2020 is to provide platform to netizens. Netizens means इंटरनेट यूजर को नेटिजन्स बोलते हैं. टू शेयर टिप्स एंड स्ट्रेटजी हाउ टू बी सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. कैसे हम लोग एक सुरक्षित और जवाबदेह के साथ इंटरनेट को यूज करें, वैसा नेटिजन्स बने. हाउ टू एड्रेस द फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन. फेक न्यूज को कैसे एड्रेस करें और मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे एड्रेस करें, स्पेशली विथ रिगार्ड टू द कोविड-19. Okay, now we'll say categories. How many categories? The competition will be divided into three categories. First category 1 will be for a school student. First category will be of a school student, means above the age of 10. Second category is for college student above the age of 17. Third category for parents, teacher and guardians. There are several competitions under the e-Raksha, from the Artcade, Tech Aavishkar to the Word Hack and Screen Master. एक एक करके देखेंगे हम आर्टकेड में क्या है, टेक आविष्कार में क्या है, वर्ड हैक और स्क्रीन मास्टर. सो अंडर आर्टकेड में क्या है, आर्टकेड स्टूडेंट्स विल हैव सेंड ए ड्राइंग, पेंटिंग, कॉमिक्स, मीम्स, स्टिकर एंड इवन द कॉमिक स्ट्रिप डिपिक्टिंग व्हाट ऑनलाइन सेफ्टी मीन्स टू देम. स्टूडेंट इसमें ड्राइंग, अपनी पेंटिंग, ड्राइंग, कॉमिक्स, मीमीज, स्टिकर्स और कॉमिक स्ट्रिप्स भेजेंगे. स्टूडेंट कैन चूज टॉपिक्स रिलेटेड टू बलिंग, विशिंग्स, मलवेयर इटीसी से रिलेटेड टॉपिक होगा. अंडर द टेक आविष्कार में क्या होगा? Participants can create the software, hardware or the firmware on theme digital citizenship and online safety. The innovation must address a problem faced in the cyberspace such as the privacy issue, safety, suraksha, trolling, online fraud, etc. The word hack on writing competition. word hack में क्या होगा? It will the receive entry from school student से receive करेगा on the short story and essay. छोटा story और essay. For a college student and parents, the competition will be on the article, blogs and research paper writing. The theme, this will be also digital citizenship and online safety. The Screen Master program. A Screen Master program, a student and teacher will have to make documentaries and interview with a string message aligning with the theme.
Concept like privacy, trolling, security tops will be accepted. The project can be either Hindi or English. स्क्रीन मास्टर में ये होगा, डॉक्यूमेंट्री जाएगी, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ मैसेज आएगी जो अलाइनिंग विथ थीम के अलाइनिंग हो, और थीम क्या है, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी, और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकती है। नाउ साइबर पीस ऑनर अवार्ड, इसमें अवार्ड भी है। पीपल अक्रॉस कैटेगरी हु थिंक दे हैव पुट एफर्ट टू प्रमोट ऑनलाइन सेफ्टी कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड विनर विल बी कन्फर्ड विथ प्राइज। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी सून इन ई-रक्षा नेट, ई-रक्षा नेट पर इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। विनर विल बी सेलेक्टेड ऑन ईच कैटेगरी फॉर ऑल द कॉम्पिटिशंस। ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू ऑल, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स फॉर दोज शॉर्ट लिस्टेड एंड द ट्रॉफीज टू द विनर्स। देखेंगे एनसीईआरटी क्या है, बिकॉज एनसीईआरटी लंच किया, एनसीईआरटी यूनिसेफ, और तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, स्वायत्त संस्था है, सेटअप इन 1961, 1961 में सेटअप हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। मान लीजिए स्कूल एजुकेशन में यह क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए इसका असिस्ट और एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1961 में बनाया। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीईआरटी इज टू कंस्टिट्यूट यूनिट टू अंडरटेक, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, मान लीजिए स्कूल एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन, प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, newsletters, journals and develops educational kits, multimedia, digital material etc. साइबर पीस फाउंडेशन क्या है, क्योंकि साइबर पीस फाउंडेशन भी इसमें के साथ मिलके इस ई रक्षा को लॉन्च किया गया, एनसीईआरटी, यूनिसेफ एंड साइबर पीस फाउंडेशन। एक प्रकार के एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 2003 में हुआ था। तो साइबर पीस फाउंडेशन वर्क टुवर्ड द इंटरनेट गवर्नेंस के लिए वर्क करता है एंड साइबर सिक्योरिटी इज अलाइंड टुवर्ड द 5 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना 70 है, जिसमें 5 पे काम करता है। कौन कौन सा? अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, जेंडर इक्वलिटी और वुमेन्स और गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए। सेकंड, डेवलप्ड इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड है मेक सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल, ब्रिंग पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, रिविटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस 5 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यह साइबर पीस फाउंडेशन काम करता है, जो एक एनजीओ है। उसके बाद देखेंगे यूनेस्को क्या है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को बॉर्न 16 नवंबर 1945। यूनेस्को हैज 195 मेंबर एंड 8 एसोसिएट मेंबर्स and is governed by the General Conference and the Executive Board. Secretariat headed by Director General, इसका जो सेक्रेटरिएट है उसको जो हेड करता है उसको डायरेक्टर जनरल इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ दिस 2 बॉडी। सेक्रेटरी जो है डिसीजन मेकर होता है, जो दोनों बॉडी का इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन का। द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन 50 फील्ड ऑफिसर अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर। यूनेस्को मिशन इज टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ कल्चर ऑफ पीस, the eradication of poverty, sustainable development and intercultural dialogue through the education, the science, culture, communication and information. यह कंट्रीब्यूट करता है कल्चर को बिल्ड करने में, पीस को, इराडिकेशन, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के जरिए। यूनेस्को वर्क टू क्रिएट ए कंडीशन फॉर डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशन, कल्चर एंड पीपल्स। It is through this dialogue that the world can achieve global visions of sustainable development, encompassing observance of the human rights, mutual respect and alleviation of poverty, all of which are at the heart of the UNESCO mission and activities. तो ये हम लोग देख दिए ई रक्षा का क्या क्या
EMI कितने कैटेगरी है और कैसे कैसे ये काम करता है, और उसको रिलेटेड हमने देखा NCERT क्या है, उसको यूनेस्को क्या है, ये सारी चीज़ें देख लिया। या PT वगैरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है किसी भी कंपटीशन में, स्पेशली इन द UPSC एंड स्टेट PCS। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इसे अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हैव ए गुड डे।